اگر یہ دورہ ہو جاتا تو اس میں فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک اچھا معاشی ساتھی مل جاتا جو کو بارڈر کے بالکل قریب ہے، اور جیسے ہمیں چیزوں کا ابھی شارٹیج چل رہی ہے، پیاز وغیرہ، سبزی، ٹماٹر، یہ چیزیں تو آتی ہی انڈیا سے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو، لیکن بہتری جو ہے نا برابری کی بنیاد پہ ہوں۔ اس طرح کے تو نہ ہونا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ وہ کر لیں، ٹریڈ کھول لیں گے، بعد میں 20 سال میں 30 سال میں ہم کشمیر پہ بات کریں گے، اگر نہ ہو وہ بعد میں کہے کہ یا نہیں ہم نے ان چیزوں پہ آپ کے ساتھ ایگری نہیں ہونا، دین پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ نریندر مودی جو نا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ٹیگ لگا ہوا ہے نا، وہ جو گجرات کا فسادات کا ٹیگ ہے، اس کے بعد ابھی یہ کشمیر کی جو سچویشن ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک صرف سیاسی دورہ ہو سکتا ہے۔ اگر مودی صاحب جو ہے وہ آ جاتے پاکستان تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہونا تھا، ہمیں بجائے اپنی جو ہے وہ سالوں سے چلتی آ رہی دشمنی کو ہمیں جو اگر ہوا نہیں دینی چاہیے، ہمیں تو اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے نا کہ ہمیں ملک جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، پاک فوج نے 2020 میں نریندر مودی کو پاکستان آنے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ نریندر مودی نے 9 اپریل 2021 میں پاکستان بلوچستان میں موجود ہنگلاج ماتا کے مندر جانا تھا اور واپسی پر 1-2 دن کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، جہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں لہرانا تھا اور یہ اعلان کرنا تھا کہ ہم تجارت کھول رہے ہیں اور ہم دونوں ملک ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے، دہشت گردی نہیں کریں گے، اور کشمیر کا جو بھی فیصلہ ہے وہ 20 سال بعد حل کیا جائے گا۔ جب یہ سارا فیصلہ ہو گیا تو شاہ محمود قریشی نے عمران خان صاحب کو ڈرا دیا کہ آپ پر مہر لگ جائے گی کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اور یہ سارا دورہ کینسل ہو گیا۔ اسی مدعے پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ اگر یہ دورہ ہو جاتا تو پاکستان کے حق میں کتنا بہتر ہوتا، پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام حسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری پاک فوج نے نریندر مودی کو پاکستان دورے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ انہوں نے 2021 میں پاکستان کا دورہ کرنا تھا، جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی تجارت بھی کھل جانی تھی اور دونوں کے آپسی میں تعلقات بھی بہتر ہونے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت بھی نہیں کریں گے اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ کریں گے، اور کشمیر کا جو بھی مسئلہ ہے وہ 20 سال بعد جو ہے مل بیٹھ کر حل کیا جائے گا۔ لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان صاحب کو ڈرا دیا اور کہا کہ آپ پر کشمیر کے سودے کا الزام عائد ہو جائے گا، جس پر عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے اور یہ دورہ کینسل ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ دورہ ہو جاتا تو پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ 800 ارب ڈالر روپے کی اکانومی ہے اور پاکستان 4.2 ارب ڈالر جو ہے ان کے ریزرو بچے ہیں۔ میم، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ دورہ ہو جاتا تو اس میں فائدہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک اچھا معاشی ساتھی مل جاتا جو کو بارڈر کے بالکل قریب ہے، اور جیسے ہمیں چیزوں کا ابھی شارٹیج چل رہی ہے، پیاز وغیرہ، سبزی، ٹماٹر، یہ چیزیں تو آتی ہی انڈیا سے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہوتا۔ لیکن جو عمران خان صاحب والی بات ہے کہ ان پہ یہ آ جانا تھا کہ انہوں نے اس کا سودا کیا ہے، تو میرے خیال سے یہ ویسے ہی ہو جاتا جیسے جناب بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، نہیں، کہا جا رہا تھا نا کہ 20 سال بعد وہ مل بیٹھ کے کشمیر کے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نریندر مودی اور عمران خان صاحب کے یا انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ جاتی تو جو پاکستانیوں کو ایک مسئلہ ہے کہ کشمیر پر مظالم ہوتے ہیں یا کشمیر کے لوگوں کے حقوق کو دبایا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں کمی دیکھنے میں ملتی؟ میم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کبھی بھی اپنے موقف پہ قائم نہیں رہا، ہمیشہ اس نے دغا کیا ہے۔ تو لیکن یہ دورہ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے کینسل ہوا نا۔ دورہ تو کینسل ہوا، اچھی بات ہے یہ، کیونکہ انڈیا کبھی اپنی بات کی لاج نہیں رکھتا اور وہ پھر سے 20 سال بعد بھی اپنے وعدے سے مکر سکتا تھا، تو اس کی کوئی پکی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کشمیر کو واپس کر دے گا۔ دیکھیں، ٹریڈ کھلتی، کشمیر تو ویسے بھی 75 سالوں سے انڈیا کے پاس ہی ہے، یہاں پر ٹریڈ کھلتی، اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے دہشت گردی جو ہے ختم ہوتی، دہشت گردی کا زوال آتا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا اچھا اقدام تھا؟ ہو سکتا ہے، لیکن غور نہیں کیا ابھی میں نے اس پہ۔ صحیح۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، جو ایک قدم پیچھے ہو گئے، یہ عمران خان صاحب کا ذاتی مفاد تھا یا ملکی مفاد تھا؟ اس میں دراصل دیکھنے کو جو مل رہا ہے، ظاہر تو عمران خان صاحب کا وذاتی مفاد ہی تھا، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اگر یہ دورہ ہو جاتا تو واقعی ان کی جان کو خطرہ تھا اور انہیں پھانسی کا بھی آرڈر دیا جا سکتا تھا، جیسے بھٹو کو دیا گیا تھا۔ صحیح، مطلب آپ عمران خان صاحب کو بھٹو سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وجہ؟ بس لیڈر ہیں دونوں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نریندر مودی پاکستان آتے اور یہ دورہ کامیاب ہو جاتا تو پاکستان بھی جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا، جس طرح انڈیا کر رہا ہے؟
जी इस बात में तो कोई शक नहीं, क्योंकि हमसाए हैं आपस में, तो ट्रेड जब होगी तो फिर जो फ़ायदे होंगे वो दोनों तरफ से होंगे, एक तरफ से नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था ये। सर नरेंद्र मोदी ने 2021 में पाकिस्तान का दौरा करना था जो कि कैंसिल हो गया। इंडिया 800 अरब डॉलर की इकॉनमी है और पाकिस्तान के पास जो रिजर्व बचे हैं वो 4.2 अरब डॉलर्स के हैं। अगर इतनी बड़ी मौशियत वाले मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाती तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता? एक्चुअली बात है ना कि सिर्फ चलो ठीक है, अगर वो हमारा नाइबर कंट्री भी है और उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो बेशक उसका तो फ़ायदा होना था, इकॉनमी भी फ़ायदा होना था, साथ में टूरिज़म भी फ़ायदा होता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो है कि आपको थोड़ी बहुत कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस भी है, और एक जो इमरान खान का था उसका कोई पॉलिटिकली भी उनका तो फिर जो है ना वो लॉस हो जाना था। एक तो उसका पॉलिटिकल लॉस था, दैट्स वाई मुझे लगता है कि उसने जो है ना वो दौरा नहीं किया या अच्छा या फॉरेन मिनिस्टर के कहने पर नहीं किया। लेकिन इससे बढ़कर एक कौम की एक इंटेग्रिटी भी होती है शायद। अगर उसने जो है ना वो जो उसका एक आज़ाद स्टेटस था वो कश्मीर का वो एब्रोगेट कर लिया, तो आई डोंट थिंक सो कि जो है ना इमरान खान को उस वक्त भी उसके साथ फिर इस ट्रैक पे चलना चाहिए था। बाकी अगर हम इकानमी की बात करें तो सिर्फ इंडिया के साथ चलो ठीक है, इंडिया इज़ अ फैक्टर, हम उसके साथ अपनी इकानमी को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शोबे ऐसे जिसके ज़रिए हम इकानमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वाई नॉट अफगानिस्तान के साथ हमारा जो ताल्लुक ओटी को, वाई नॉट ईरान के साथ जो हमारी गैस पे प्लान है ओटी को, वाई नॉट जो हमारे ईस्ट जो है ना मिड ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ठीक हो। इससे अलावा जो जितने भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपका IT का फील्ड हो गया, जैसे आपके जो आपका इफ़ेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन इन बहुत सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेना तो मे बी इंडिया का जो हमारे ऊपर एक इफ़ेक्ट आ रहा है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आ रहा है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते थे। लेकिन मैं बेशक ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि इंडिया को हम टोटली जो है ना उसको हम निगेट कर सकते, निगेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातें आपकी कौमी इंटेग्रिटी भी होती है और साथ में अपने दूसरे फैक्टर्स को भी देखना होगा। तो आपने बात की कश्मीर की, तो हो सकता है कि कश्मीर के मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आता। इमरान खान अब ऑलरेडी इंटरनेशनल फॉर्म्स पे जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो करते रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल्स पर वो बात करते रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आती तो कश्मीर के हवाले से भी जाहिर है हमारी कुछ ना कुछ तो सुनी जाती ना कोई तो हल निकलता। डू यू थिंक कि सब चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं। जिन लोगों ने करना होता है वो कर भी देते हैं, और जो लोग नहीं करने देते वो नहीं करने भी देते। मेन प्रॉब्लम यही है, जैसे नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी कहा था कि यार हमें समझ नहीं थी कि हम बात उसके पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस है या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज है उनके साथ करें या हमारे जो यू कैन से एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ करें। तो नरेंद्र मोदी को आने के लिए मनाया भी तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं ना, हमारी फौज नहीं मनाया। देखिए बाद में प्रॉब्लम्स भी रही क्रिएट होनी थी ना। अगर आपकी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ है और आपके एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई उसमें कंसेंसस नहीं हो तो फिर भी तो मुश्किल था, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हम फिर बाद में हम पे ये लेबल लगे कि एक्चुअली वी हैव सोल्ड आउट द कश्मीरीज। सर ट्रेड खुलती, तजारत होती दोनों मुल्कों के दरमियान, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मौशियत बेहतर होती। अभी आप देखें ट्रेड बंद होने की वजह से हमारी मेडिसिन के रेट देख लें, सब्जियों के रेट देख लें, गंदम के हमें लाले पड़े हुए हैं। ट्रेड तो पहले भी हमारे इंडिया के साथ चल रही थी, वो इमरान खान साहब के आने के बाद बंद हो गई। वो नहीं तो पहले चल रही थी, तो हमारी इकानमी कौन सी ऐसे टॉप पे थी। अच्छा। उस वक्त भी तो हमारी इकानमी का हाल देख लेना। इमरान खान के आने से पहले हमारे रिजर्व्स कितने थे? देवर जस्ट उस वक्त भी जो है ना हमारे बहुत ही कम रिजर्व थे, आई थिंक 8 to 9 बिलियन डॉलर्स थे। इसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर इंडिया के साथ हमारा ट्रेड बंद भी हो जाए ना तब भी हमारे मेडिसिन भी ठीक आ रहे थे, क्योंकि हम मेडिसिन इंडिया से तो इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, दूसरे कंट्री। रॉ मटेरियल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इंडिया से आता है, बहुत सारी मेडिसिन भी इंडिया से आती हैं। ठीक है ना, लेकिन उसका हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, उसको हम दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी सारा मसला है कि इन्होंने LCs बंद की हुई है ना, दैट्स वाई रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं आ रहा। हालांकि इमरान खान के दौर में अगर आप देखें, मैं जस्ट एक PTI के फॉलोअर के तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता, आई एम जस्ट गिविंग माई ओपिनियन। देखिए उसके दौर में तो आपकी इकानमी ठीक हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ को देखें, टेक्सटाइल्स को देखें, इवन शुगर को देखें, आपके बाकी बहुत सारे जो इन फैक्टर्स थे इकानमिक से रिलेटेड वो इम्प्रूव हो रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि हम सिर्फ इसको जाके इंडिया के साथ जो है ना रिलेट करें और हम कहें कि इंडिया के ज़रिए हम इस ट्रेड, एक्चुअली एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। जितना मुझे लगता है ना कि अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे तो हमारा ये भला हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। आपको नहीं लगता कोई भी फ़ायदा है? नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। देखिए फ़ायदा तब होगा जब तक आपके जो डिफरेंसेस है, जो आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो मिनिमम ना हो। जब तक वो मिनिमाइज़ नहीं होंगे आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई फ़ायदा होगा। दहशतगर्दी भी कम ना होती? दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है? अफगानिस्तान से हो रही है, इंडिया से तो नहीं हो रही। कभी आपने यहाँ पे देखे कि यार इधर ये जो लाहौर का हमारे पास बॉर्डर है उससे आपने देखा हो कि जो है ना वो
दहशत गर्द आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि वो जो अफ़गानिस्तान का जो हमारे पास बाउंड्री है उसी से दहशत गर्द इंटर हो रहे हैं। तो ये जस्ट आई थिंक कि हमें बताया गया है कि यार वहाँ से ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप ये बॉर्डर सिक्योर कर लें, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका जो है ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या भी होगा। वैसे आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? यस, हम सब चाहते हैं कि उसके साथ ताल्लुकात में बेहतरी हो, लेकिन बेहतरी जो है ना बराबरी की बुनियाद पे हो। इस तरह के तो ना होना कि आप जो है ना मेरे साथ वो कर ले, ट्रेड खोल लेंगे, बाद में 20 साल में 30 साल में हम कश्मीर पे बात करेंगे। अगर ना हो वो बाद में कहे कि या नहीं हमने इन चीज़ों पे आपके साथ एग्री नहीं होना, देन सही। फिर उसका क्या जवाब होगा? उसका कोई सोल्यूशन है फिर किसी के पास, या कोई गारंटर है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इंडिया एक ऐसे स्टेट पे है ना जिसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी इकानमी को देके फिर उनका जो स्टेटस है आपके एक, तो पाकिस्तान तो उसके मुकाबले यू कैन से कि जस्ट लाइक अ बडिंग एक मुल्क है। तो हम ठीक है, उसका एक फैक्टर होगा, हमें फ़ायदा भी होगा, लेकिन बराबरी के उस पे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका नाम? फ़ाहद तोकीर। शफीकुर रहमान। सर, जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2021 में पाकिस्तान का दौरा करना था, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर इमरान खान साहब ने कैंसिल कर दिया। क्या देखते हैं अगर ये दौरा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता? बेसिकली दौरा उनका भी हो या इधर से भी कुछ आए, तो हम तो ये चाहते हैं कि बराबरी के ताल्लुकात पे कायम हो। ठीक है, नो डाउट कि उनका जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों एक नेबरहुड हैं, तो ट्रेड अगर खुलती है तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम लो या आपकी सिचुएशन में बात करें। ठीक है, तो हम चाहते थे कि हमारा जो दौरा हो वो एक बराबरी के ताल्लुकात पे हो। तो बेसिकली अगर हो जाता तो अच्छी बात है, इस तरह इनके जो दिल में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो नो डाउट ये डिपेंड करता है कि टाइम पे। आप क्या कहेंगे सर, क्या ये दौरा कैंसिल होना ठीक रहा, इसको होना चाहिए था या नहीं? इस दौरे को हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले मसला है कश्मीर का जो मसला है ना, वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, हमारे मुसलमान भाई हैं वो बंद होना चाहिए। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हक़ में अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा। क्योंकि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती है, और ये तो स्टैंप लगी हुई है कश्मीर पे, एक बहाना बना हुआ है इनका, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना ही करना है, तो ये हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ ज़्यादती करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले वो मसला हल होना चाहिए, उसके बाद हम इनसे कोई बात कर सकते हैं। बाकी तजारत, ट्रेडिंग, फ़ायदा, ये तो सब मामला बाद क्यों, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। ये हमारी अपनी सोच है कि हम उस मुल्क के साथ ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, हमें सफारती नुकसान ना हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम ये मसला तहरीक लब्बैक का जो हुआ है उसमें उन्होंने कहा जी हम फ्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे तो फ़लाँ नुकसान हो जाएगा। जब रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया है तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में सोचने वाले? या तो हमारा फिर ईमान कमज़ोर हो गया है। वो हमारे कश्मीरी भाई हैं, पहले उनको हक़ दिया जाए, उनके राइट्स दिए जाएँ, उसके बाद हम इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते। सर, तो कश्मीर का मसला भी हल हो सकता था ना कोई हल निकल सकता था। उन्होंने बोला कि हम 20 साल बाद मिल बैठ के कश्मीर के मसले को हल करेंगे। हो सकता है कि 20 साल से पहले ही उसका कोई ना कोई हल निकल आता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, जब से ये मसला हल नहीं हुआ, हर बंदा इसमें अपनी सियासी पकोड़े तल रहा है। ठीक है, आता है वो बस अपनी जो ना ख्वाहिशात के मुताबिक अपने नारेबाजी करवाई और साइड पे हो गए, इसका हल कोई नहीं निकाल रहा, इसका सलूशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो जब सलूशन नहीं निकला तो वो 20 साल वाला जो लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं, या तो वो हमारे इमरान खान लीडर जी जो हमारी जान है उनको टरखा रहे हैं, ठीक है, या उन्हें भांपना चाह रहे हैं, या उन्हें ख़रीदना चाह रहे हैं दूसरों की तरह। अदरवाइज़ मैं नहीं मानता कि वो यहाँ पे आता और हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी तो नॉट पॉसिबल। नरेंद्र मोदी जो ना हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। टैग लगा हुआ है ना, वो जो गुजरात का फसादत का टैग है, उसके बाद अभी ये कश्मीर की जो सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं समझते कि ऐसी कोई दोबारा बात हो सकती है। ये एक सिर्फ सियासी दौरा हो सकता है, लेकिन इसमें कश्मीर की कोई बात नहीं हो सकती। सर, आपने भी कहा और आपने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, तो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हर कंट्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है, उनकी मुल्क के साथ तजारत कर रही है। आप सऊदीया देख लें, दुबई देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, क्या वो इस्लामिक कंट्री? उन मुल्कों की क्रिकेट टीम नहीं है। ये वाकई की बात है। क्या मतलब? नहीं, मसला ये है कि इसको बेसिकली ना हम एक ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि कश्मीर का मसला में हमें नहीं लगता कि कश्मीर का मसला हल हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद आमिर। हमाद, मुझे बताएं कि अगर नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान हो जाता, इंडिया जो इस वक्त
800 अरब डॉलर की इकॉनमी है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.2 अरब डॉलर के रिजर्व बचे हैं, तो पाकिस्तान के लिए दौरा कितना फ़ायदेमंद साबित होता? जी एक्चुअली यार ये जो बात है ना कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया के जो दुश्मन हैं, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। जो आम लोग जिनकी बात करें ना, ये सब सोचते नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। आप लोग आम लोगों से बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनके लिए, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, बजाय कि जो हुक्मरान है ना, ये बेसिकली जो हुक्मरान है, इनके दिलों में जो है वो एक दूसरे के लिए नफरत है। ये सालों से चलता आ रहा है। आप जो इन लोगों की बात करेंगे ना, जो आम लोकल लोग हैं, इनके दिलों में एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं है। और बात करें जहाँ तक इकोनॉमी की, तो जी जो है इकनॉमी है वो पहले हमारी बहुत ज़्यादा जो है डाउनवर्ड जा रही है। तो हमें बजाय इसके कि अपनी नफरत को जो है हम हवा देनी चाहिए, हमें जो है वो अपने इकोनॉमी की तरफ देखना चाहिए, अपने मुल्क को तरक्की देने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अब अगर मोदी साहब जो है वो आ जाते पाकिस्तान, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होना था। हमें बजाय अपनी जो है वो सालों से चलती आ रही दुश्मनी को हमें जो अगर हवा नहीं देनी चाहिए, हमें तो अपने मुल्क की तरफ देखना चाहिए ना, कि हमें मुल्क जो है वो उसको आगे लेके जाना है। पहले ही हम इमरान खान का साथ देंगे तो हम आगे जाएंगे ना। देखिए अब वो किस तरह हमें जो है वो आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये सोचना है कि कश्मीर का जो है सौदा किया जा रहा है, ये तो फिर एक जो है तंग नज़रिए की बात है। ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ रही। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर 75 सालों में कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ तो 20 सालों में क्या हल होगा? जी अगर देखिए ना कि अगर हम बात करने पे आएंगे तो बात होगी ना। अगर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं वो हमारा दुश्मन है, हमने बात करनी नहीं है, तो बात होगी किस तरह? हम बैठेंगे मिलके, अगर हम इकोनॉमी चलने देते हैं तो हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे। तल्लुकात बेहतर होंगे तो ही हम हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी पैदा होगी। और हम जाहिर है ट्रेड गुलती, दहशतगर्दी का जो है वो जवाल होता, दोनों मुल्क जो है वो मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करते। जी जी बिल्कुल इसी तरह ये है ना। देखें आप ये जो है नफरत की बजाय हमें अपने फ़ायदे की सोचना चाहिए ना। अभी हमारा भी फ़ायदा भी होगा। वो जो है इंडिया वाले वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया जाएंगे, एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के हम काबिल हो सकेंगे। जाहिर है अब ये जो दौर है हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है और हर कंट्री इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाए हुए है सवाए पाकिस्तान के। जी ये एक्चुअली आपने मैचेस में भी देखा होगा कि हम सिर्फ इंडिया को हराना चाहते हैं, पाकिस्तान वाले भी इंडिया को हराना चाहते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान को हराना चाहते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ हमारी जो है वो पिछले जो लोग हैं उनकी जो एक दूसरे के लिए नफरत है। अब ये जिस तरह मतलब ये जो नफरत है दिलों में, तो मतलब इसको हमें कभी ना कभी तो ख़त्म करना होगा। कब तक आखिर हम लड़ते रहेंगे? आपने जो अरब कबीलों का भी देखा होगा कि वो लड़ते रहते थे और आखिरकार उन्हें फ़ायदा क्या हुआ? लड़ाई में फ़ायदा नहीं है, समझौता जो है ना उसमें फ़ायदा है, लड़ाई में कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान के हवाले से, जो कि कैंसिल हो चुका है। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी का दौरा पाकिस्तान होना चाहिए था। इससे ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी थी, बल्कि पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे भी होने थे। आप किस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।